Good morning, students. In today's lecture, we will discuss new concept, that is thermoelectricity. So what is thermoelectricity? Electricity, we know that whenever current passing through any conductor, that branch of physics is known as electricity, or moving charges, the study of moving charges is known as electricity. Thermoelectricity, thermal energy, heat energy. Okay. Thermoelectricity is the branch of electricity which deals with the generation of EMF due to temperature difference between various points of the same conductor or two conductors in contact with each other is known as thermoelectricity. Thermoelectricity is also defined as the production of electric current due to temperature gradient, due to temperature difference at 2 points of the conductor. Okay. Now what is thermocouple? Thermocouples, that means the combination in which two different metals are connected with each other such that it forms two junctions. For example, copper metal and iron metal, Cu and Fe. Copper metal and iron metal, if they are connected at 2 points, okay, A point and B point, so these are known as two junctions. So this forms a thermocouple. And if A point and B point, if there is temperature difference, suppose A point is at hot end, B end is known as cold end, that means temperature at A junction is higher than temperature at B junction. So current flows through this couple, that is known as thermocouple. And that detection of current, for the detection of current we use galvanometer here. So in this way thermocouple is produced. So thermocouple is nothing but the combination of two different metals, okay, joined at 2 points forming two junctions. Okay, then this temperature difference between A and B point, hot end and cold end, तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस होगा एंड ड्यू टू दिस टेम्परेचर डिफरेंस अ करंट प्रोड्यूसेस इन द thermocouple. Okay, that is known as thermocurrent. And we know that current flows, that means there is EMF, there is potential difference. Okay, so due to that EMF, current flows through the thermocouple and that is known as thermoelectric current. Okay, now this is one of the effect that temperature difference, देखिए A junction and B junctions पर टेम्परेचर अगर डिफरेंट है तो वहां पर एक इफेक्ट होगा and that produces EMF or generate EMF in the thermocouple, that is thermocurrent, thermoelectric current. Okay, so this is one of the effect of thermoelectric current or thermoelectric effects. So there are such three types of thermoelectric effects: Seebeck effect, Peltier effect and Thomson effect. तो एक एक इफेक्ट हम यहाँ पर डिटेल डिस्कस करने वाले हैं. नंबर 1, Seebeck effect. Okay, now what is Seebeck effect? It is the phenomenon of generation of EMF due to temperature difference at the two junctions of a thermocouple. अब thermocouple का मीनिंग क्लियर है ना? For example, copper metal and iron metal are connected such that it forms two junctions or two ends, A junction and B junction. Okay, now hot end and cold end, let the temperature at A junction is greater than temperature at B junction, then current produces in it. This is known as Seebeck effect. Okay, देखिए सपोज यहाँ पर कॉपर और आयरन का एक थर्मोकपल हमने तैयार किया है. There are two ends A and B. Consider A end and B end are both at the same temperature initially. Okay, A junction and B junction दोनों का टेम्परेचर सेम है यहाँ पर, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा यहाँ पर 0. इसका मतलब यहाँ पर थर्मल इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होगी, मतलब थर्मो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा. थर्मो ईएमएफ कितना होगा 0 होगा. सो दैट गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन. Okay, now when A end is heated keeping B end at cold, okay,
तो यहाँ पर ग्रेजुअली अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ए जंक्शन एंड बी जंक्शन विल इंक्रीज. ओके, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर suppose A end is hot end and B end is cold end, so that the thermo EMF is generated first, okay, because of difference in the temperature. So this is known as temperature gradient, and due to temperature gradient वहाँ पर एक thermo EMF generate होता है, and due to thermo EMF thermoelectric current generates through it. Okay, अब thermoelectric current की वैल्यू कितनी होती है? Very very small. जैसे थर्मो EMF, नो थर्मो EMF इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई. इसकी वैल्यू कितनी होती है? ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो वोल्ट और मिली वोल्ट, इतना कम होता है थर्मो EMF. 10⁻⁻6 वोल्ट या फिर 10⁻³ वोल्ट के दरमियान होता है. सो दिस इज द रेंज. सो थर्मो इलेक्ट्रिक करंट भी बहुत कम होगी, है ना. हाँ, नाउ but that small amount of current can be detected by galvanometer, so we connect galvanometer in this thermocouple circuit. Okay, now so what is Seebeck effect then? That is the phenomenon of production of electric current or thermoelectric EMF when two junctions of the thermocouple is kept at temperature different, okay, or different temperatures. नो देखिए, सपोज यहाँ पर कॉपर मेटल एंड आयरन मेटल, ओके, ये ज्वाइन कर लिया हमने एट द टू जंक्शंस फॉर्मिंग थर्मोकपल. नो इफ ए एंड बी junctions are at same temperature, so no thermo EMF is produced or no current flowing through it. Why? Because galvanometer shows no deflection. Suppose junction A is at high temperature and junction B is at low temperature, that is A is hot end, B is cold end. Then due to temperature difference thermo EMF is generated, and due to thermo EMF thermoelectric current passes through the circuit, okay, and that can be detected by using galvanometer. We know that thermo EMF has very small magnitude of the order of microvolt or millivolt, so thermoelectric current is also very very small. Okay, such type of effect is known as Seebeck effect, right? Now, magnitude and direction of thermo EMF E is depend upon, okay, number one देखिए, nature of material forming the thermocouple. इसका मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पर कॉपर और आयरन, ये मटेरियल से ये थर्मोकपल हमने तैयार किया है, तो अगर अदर मेटल्स हम लेते तो वहां पर थर्मो EMF का मैग्नीट्यूड अलग होगा, उसकी डायरेक्शन भी अलग होगी. Also it depends upon temperature difference between the junctions of thermocouples. मतलब A end and B end दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस अगर चेंज होता है तो वहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नीट्यूड ऑफ थर्मो EMF भी चेंज होगा. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ थर्मो EMF डिपेंड्स ऑन बोथ nature of material forming thermocouple and also temperature difference between the junctions of the thermocouple. अब nature of material पर कैसे डिपेंड करता है, ओके, यहाँ पर डिस्कस करते हैं. The scientist Seebeck arranged experimentally, okay, the metals in a sequence or in a series, that is known as Seebeck series or thermoelectric series, such that any two of the metal can form a thermocouple. Okay, देखिए यहाँ से Te2Bi ये मेटल्स यहाँ पर अरेंज किए सीक्वेंसली एंड इन द सीरीज. देखिए टेलोरियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, यहाँ पर सिंबल्स लिखे इसके, आयरन, कैडमियम, जिंक, Ag मतलब सिल्वर, ऑरम गोल्ड, है ना, Au, क्रोमियम, स्ट्रोंसियम, Sn, lead, that is lead, प्लम्बम, Hg का मतलब मर्क्यूरी, Mn मैग्नीज, Cu कॉपर, प्लैटिनम, कोबाल्ट, निकेल, बिस्मथ. So these metals are arranged in a series that is known as Seebeck series or thermoelectric series. अब देखिए यहाँ पर जैसे
कॉपर और आयन का एक यहाँ पर थर्मोकपल दिया है ना। देखिए यहाँ पर कॉपर है और यहाँ पर आयरन है, तो इन दो मेटल से हमने थर्मोइलेक्ट्रिक कपल मतलब थर्मोकपल तैयार किया था। ओके, देखिए कॉपर एंड आयरन से यहाँ पर एक थर्मोकपल का एग्जांपल हमने लिया है। हम यहाँ पर और एक एग्जांपल कौन सा ले सकते हैं हम, एंटीमनी एसबी एंड बिस्मथ, ये दो मेटल्स हम यूज करके यहाँ पर थर्मोकपल तैयार कर सकते हैं। या फिर आयरन एंड प्लैटिनम, या फिर जिंक एंड मैग्नीज। इसका मतलब एनी टू मेटल्स यहां पर हम लेकर के थर्मोकपल तैयार कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ Seebeck arranged experimentally these elements or metals in the series। इसका एक मीनिंग है यहाँ पर, देखिए जैसे यहाँ पर कॉपर और आयरन। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ थर्मो ईएमएफ कैसी होती है, एट हॉट एंड इट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ थर्मो ईएमएफ एंड आल्सो करंट। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ थर्मो ईएमएफ और करंट, मतलब थर्मो ईएमएफ और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम होगी। तो हॉट एंड पर देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट या थर्मो ईएमएफ कैसे, फ्रॉम कॉपर टू आयरन, एंड एट द कोल्ड एंड डायरेक्शन कैसी, ईएमएफ एंड थर्मो इलेक्ट्रिक करंट की, फ्रॉम आयरन टू कॉपर। ओके, दिस इज द डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन को यहां पर कैसे एक्सप्लेन किया है, देखिए एट द कोल्ड जंक्शन, देखिए this arrow represents the direction of current at the cold junction। okay, and this arrow represents the direction of current through hot junction। अब A पॉइंट पर hot junction है। अब hot junction मतलब देखिए ये डायरेक्शन कॉपर टू आयरन की तरफ जा रही है, इसका मतलब at hot end what is the direction of current from copper to iron। एंड ये ऊपर का एरो क्या डिनोट करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू कोल्ड जंक्शन। अब कोल्ड जंक्शन पर देखिए डायरेक्शन कैसे होगी, फ्रॉम Fe टू Cu, फ्रॉम आयरन टू कॉपर, ये डायरेक्शन होगी। ओके, सो दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहां पर अगर एंटीमनी एंड बिस्मथ का थर्मोकपल होता है तो हॉट एंड पर मुझे बताइए डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे होगी, फ्रॉम SB टू BI या फिर फ्रॉम BI टू SB। हॉट जंक्शन पर कौन सी डायरेक्शन होगी, फ्रॉम बिस्मथ टू एंटीमनी, है ना। हॉट जंक्शन की डायरेक्शन देखिए फ्रॉम BI टू SB। एंड एट द कोल्ड जंक्शन डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे होगी, दिस इज द डायरेक्शन फ्रॉम एंटीमनी टू बिस्मथ। राइट स्टूडेंट्स, तो इस तरह से magnitude and direction of thermo EMF depends on nature of material forming thermocouple। तो ये आपको याद रखना है। ओके, then magnitude and direction of thermo EMF or thermoelectric current depends on temperature difference between the junctions of the thermocouple। अब देखिए suppose initially A end and B end मतलब hot junction and cold junction दोनों का टेम्परेचर सेम लेते हैं, इसका मतलब टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। सो देयर इज नो करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। ओके, तो देखिए यहाँ पर नाउ वी विल डिस्कस हियर वेरिएशन ऑफ E एंड T। व्हाट इज E, थर्मो ईएमएफ एंड टेम्परेचर। ओके, इनके बीच रिलेशन क्या है यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो हॉट जंक्शन एंड कोल्ड जंक्शन अगर दोनों पर यहां पर कितना टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो ईएमएफ 0 होगा, है ना। थर्मो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा बिकॉज गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन व्हेन A एंड B एंड आर एट द सेम टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल हम इसको दोनों टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर TC। ओके, अब यहां पर TC का मतलब क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन। देखिए हॉट जंक्शन एंड कोल्ड जंक्शन दोनों सेम टेम्परेचर पर है और वो टेम्परेचर हम कितना ले रहे हैं यहाँ पर, 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो हॉट जंक्शन एंड कोल्ड जंक्शन दोनों का टेम्परेचर अब सेम है, तो दैट इज डिनोटेड बाय टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए
एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर है, ओके, डिग्री सेल्सियस में हम ले सकते हैं या फिर केल्विन में, एंड अलोंग द वाई एक्सिस थर्मो ईएमएफ दैट इज वोल्ट, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो वोल्ट या मिली वोल्ट, तो ये वोल्ट उसका यूनिट है यहाँ पर, ओके। नाउ कीपिंग कोल्ड जंक्शन एट 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, हॉट जंक्शन का टेम्परेचर हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। देखिए टेम्परेचर जैसे हम इंक्रीज करेंगे ईएमएफ दैट इज थर्मो ईएमएफ इंक्रीज होगा, ओके, एंड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर थर्मो ईएमएफ बिकम्स मैक्सिमम, दैट इज नोन एज ई मैक्सिमम। यहाँ पर थर्मो ईएमएफ जनरेटेड इन द thermocouple circuit will be maximum, okay. Now if we further increase the temperature gradually, then instead of increasing thermo EMF उसका magnitude अब कम हो जाएगा, now it is decreasing, okay, and at particular temperature that thermo EMF becomes 0, okay students। अब देखिए यहाँ पर main reason क्या है, थर्मो ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस होता है, ओके, वो बात क्लियर कर देते पहले। देखिए कॉपर मेटल एंड आयरन मेटल इस दो पॉइंट पर हमने ज्वाइन कर लिए, देयरफॉर यहाँ पर दो जंक्शंस तैयार हो गए। अगर दोनों जंक्शन का टेम्परेचर सेम है तो ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस नहीं होता है या फिर थर्मो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट क्यों नहीं होती है, ओके, बिकॉज डिफरेंट मेटल्स हैज डिफरेंट नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यहां पर क्या किया है सीबेक ने, दैट मेटल्स आर क्लासिफाइड एंड अरेंज इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, ओके। अब इनका नंबर डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट है, तो जंक्शन पर टेम्परेचर अगर सेम है मतलब इक्विलिब्रियम, तो नंबर डेंसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्विलिब्रियम में, ओके। What is number density and electron density? That is number of electrons per unit volume of the metal. Okay. Now, अगर हम temperature change कर देते हैं, temperature of hot junction increases gradually, temperature of cold junction उतना ही रखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, temperature difference between the junction हो जाएगा, okay. And due to temperature difference, inequilibrium produce होगी. And to obtain the equilibrium, the electrons tries to diffuse from higher density to lower density। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे फ्रॉम हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल। जैसे यहाँ पर देखिए आयरन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है कंपेयर टू कॉपर, ओके, तो इसलिए फिर क्या होगा, एट द हॉट जंक्शन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम आयरन मेटल टू द कॉपर मेटल, राइट। तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी मूवमेंट की, उसके अपोजिट किसकी डायरेक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन, सो करंट मूव्स फ्रॉम कॉपर टू आयरन। इसी तरह से यहां पर देखिए एट द कोल्ड एंड यहां पर इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम कॉपर टू आयरन, इसलिए करंट की डायरेक्शन क्या होगी, थर्मो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन फ्रॉम आयरन टू कॉपर, ओके। सो यहां पर ये बेसिक रीजन यहां पर है कि टू ऑब्टेन द इक्विलिब्रियम। देखिए अगर दो जंक्शंस ऑफ थर्मोकपल डिफरेंट टेम्परेचर्स पर है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्विलिब्रियम में हो जाएगी, ओके। टू ऑब्टेन द इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल टू द लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल, ओके। तो यहां पर देखिए फिर से इसका मीनिंग क्लियर करते हैं। As temperature of hot junction increases by keeping the cold junction at 0 degrees Celsius. Okay. As temperature increases, first EMF, that is thermo EMF, goes on increasing. At particular temperature, thermo EMF becomes maximum. If we further increase the temperature of hot junction continuously, thermo EMF now decreases and becomes 0. तो TC का मीनिंग क्लियर हो गया आपको, that is टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन, ओके। व्हाट इज TN? TN का मीनिंग होता है न्यूट्रल टेम्परेचर। क्या होता है इसका मीनिंग? TN का मीनिंग होता है न्यूट्रल टेम्परेचर, ओके। सो व्हाट इज न्यूट्रल टेम्परेचर? द टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन इन अ थर्मोकपल, ओके, at which
the thermo EMF generated in thermocouple is maximum, that temperature is known as neutral temperature. अब किसी भी थर्मोकपल के लिए न्यूट्रल टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट रहता है फॉर पर्टिकुलर, जैसे कि कॉपर आयन, ओके देखिए यहाँ पर कॉपर आयन थर्मोकपल के लिए अगर Tc 0 डिग्री सेल्सियस है, ओके तो Tn कितना होगा 270 डिग्री सेल्सियस, तो ये फिगर यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी, ओके। नो as temperature increases thermo EMF decreases and becomes 0, that is known as Ti. So what is Ti? That is temperature of inversion. अब temperature of inversion का मतलब क्या होता है? The temperature of hot junction in thermocouple where the thermo EMF becomes 0. Okay. जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया आपने, Tc की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री सेल्सियस फॉर कॉपर आयन थर्मोकपल, Tc इज इक्वल 0 डिग्री सेल्सियस, Tn की वैल्यू कितनी होगी 270 डिग्री सेल्सियस एंड Ti कितना होगा यहाँ पर 540 डिग्री सेल्सियस, राइट। अगर हम कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, ओके कॉपर आयन थर्मोकपल के लिए, और एक एग्जांपल लेंगे हम, सपोज कॉपर आयन थर्मोकपल में कोल्ड जंक्शन एंड हॉट जंक्शन दोनों का टेम्परेचर सेम है और वो टेम्परेचर कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस की जगह पर अगर हमने टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन एंड टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन कितना लिया है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब अब टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर स्टार्टिंग क्या होगी 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। देन as we increase the temperature, okay, at particular temperature where thermo EMF becomes maximum, that temperature is known as neutral temperature. अब यहाँ पर neutral temperature कितना होगा 270, वो तो चेंज नहीं होगा ना, because for particular thermocouple neutral temperature फिक्स रहता है, okay. लेकिन temperature of cold junction and temperature of inversion चेंज हो सकता है। अब यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ इन्वर्शन कितना है, देखिए इस एग्जांपल में अगर हम कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर 100 लेते हैं, ओके तो 440 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर ऑफ इन्वर्शन कम हो गया, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन अगर इंक्रीज करते हैं। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, टेम्परेचर न्यूट्रल टेम्परेचर कोल्ड जंक्शन के टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ओके ध्यान दीजिएगा। Neutral temperature depends only on the temperature of hot junction, not at the temperature of cold junction. देखिए यहाँ पर क्लियर होगा ना, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन 100 डिग्री सेल्सियस, दोनों केस में न्यूट्रल टेम्परेचर कितना है 270 डिग्री सेल्सियस। तो न्यूट्रल टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन इन थर्मोकपल, ओके। नो अब यहाँ पर देखिए टेम्परेचर ऑफ इन्वर्शन कितना है 540, तब कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर कितना है 0, ओके। नाउ टेम्परेचर ऑफ इन्वर्शन बिकम्स 440 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इस एग्जांपल में टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन कितना है 100, इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ इन्वर्शन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन एज वेल एज टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन। देखिए टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन अगर चेंज कर देते हैं तो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन भी यहाँ पर चेंज हो रहा है ना। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट कौन सा होगा, देखिए कि Ti की वैल्यू Tn से जितना ज्यादा ऊपर है, ओके, तो Tc की वैल्यू उतनी कम होती है फ्रॉम द Tn। इसका मीनिंग क्या है कि Ti और Tn का जितना डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस Tn और Tc का रहता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जैसे कि देखिए Tn और Ti इनका डिफरेंस क्या लिखेंगे हम, Ti माइनस Tn, ओके, Ti माइनस Tn इज इक्वल, अब दोनों का टेम्परेचर Tn माइनस Tc, Tn माइनस Tc। अब माइनस Tn अगर इधर लाते हम तो ये Tn और ये प्लस Tn कितना होगा 2Tn इज इक्वल टू Ti, और इधर आने के बाद प्लस Tc हो जाएगा, ओके। अब देखिए Tn इज इक्वल टू, ये 2 इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, Ti प्लस Tc डिवाइडेड बाय 2,
तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मिलता है। अगर किसी न्यूमेरिकल में टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन एंड टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन दिया है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यूट्रल टेम्परेचर? जस्ट द अरिथमेटिक मीन ऑफ टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन एंड टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन। ओके, Tn इज इक्वल टू Ti प्लस Tc डिवाइड बाय 2। अगर किसी एग्जांपल में टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन अगर 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, ओके, तो यहाँ पर Tc की वैल्यू हम क्या लेंगे? 0। तो Tn के लिए फॉर्मूला क्या होगा? Tn इज इक्वल टू Ti डिवाइडेड बाय 2। तो ऐसे कंडीशन में फिर न्यूट्रल टेम्परेचर टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन का हाफ होता है। कब? जब कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर कितना होगा? 0। ओके, देखिए यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस, 270 डिग्री सेल्सियस, या फिर Ti कितना है? 540। तो 540 का हाफ कितना होगा? 270। अगर Tc की वैल्यू 0 नहीं है तो फिर ये फॉर्मूला यूज करना है हमें। देखिए Ti कितना है? 440 प्लस Tc 100, 440 प्लस 100 कितना होगा? 540 डिवाइड बाय 2 मतलब 270। ओके, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉपर आयन थर्मोकपल। अब ये पॉइंट्स जो होंगे, मतलब टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन, न्यूट्रल टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, और ये फॉर्मूलेज आर एप्लीकेबल फॉर एनी अदर थर्मोकपल्स। ओके, अब देखिए और एक पॉइंट यहां पर, इफ कोल्ड जंक्शन इज केप्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, तो थर्मो ईएमएफ के लिए जनरल फॉर्मूला है E is equal to alpha T plus beta T square by 2. What is E? Thermo EMF. T, temperature of hot junction. Okay. And alpha and beta are constant. तो ये जनरल इक्वेशन यहाँ पर है. This is equation number 1. Okay, students. Now, thermoelectric power that is denoted by S. So, thermoelectric power का मीनिंग क्या होता है? Thermoelectric power is nothing but the rate of change of thermo EMF with temperature, okay, is known as thermoelectric power. देखिए, according to definition, S is equal to dE by dt. That means rate of change of thermo EMF with respect to temperature. यहाँ पर capital T का मतलब temperature. Okay, so it is equal to d dt of rate of change of थर्मो ईएमएफ विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अब थर्मो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर देखिए, कौन से कंडीशन के लिए? इफ कोल्ड जंक्शन इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो E के लिए फॉर्मूला अल्फा T प्लस बीटा T स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो S इज इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, अल्फा प्लस T का पावर 2 है मतलब 2 बीटा T 2 माइनस 1 मतलब T का पावर 1 रहेगा अपॉन 2। ओके, दैट मीन्स थर्मो इलेक्ट्रिक पावर सिंबल S इज इक्वल टू dE बाय dt। ओके, इट इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 2 कैंसिल मतलब अल्फा प्लस बीटा T। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फॉर थर्मो इलेक्ट्रिक पावर, राइट। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि नंबर 1 A T इज इक्वल टू 0। ओके, अगर टेम्परेचर 0 है यहाँ पर तो S की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? देखिए, therefore S इज इक्वल टू अल्फा, बिकॉज T की वैल्यू हमने 0 ली है ना। इसका मतलब थर्मो इलेक्ट्रिक पावर S इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा मतलब कांस्टेंट। देखिए, अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट होगा। सो थर्मो इलेक्ट्रिक पावर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन, है ना। तो यहां पर ये प्रूव होता है। अब सेकंड, इफ T इज इक्वल टू Tn, देखिए ये पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। T इज इक्वल टू Tn, अगर टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन बिकम्स इक्वल टू न्यूट्रल टेम्परेचर, तो न्यूट्रल टेम्परेचर पर देखिए E कैसा होता है? थर्मो ईएमएफ मैक्सिमम होता है ना। तो दैट E इज इक्वल टू E मैक्स, मैक्सिमम होता है, एंड इट इज कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर कपल फॉर टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, तो थर्मो इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा? S इज इक्वल टू D
बाय dt ऑफ ई मैक्स। ओके, अब ई मैक्स मतलब फिक्स वैल्यू, अगर फिक्स वैल्यू या कांस्टेंट होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा जीरो। देयरफॉर s इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब देखिए ये जो फॉर्मूला होगा यस की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब टी के जगह पर क्या लिखना है, टी एन लिखना है, टी एन। देयरफॉर टी एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ठीक है, बीटा टी एन इज इक्वल टू, दूसरी तरफ आने के बाद माइनस अल्फा हो जाएगा। ओके, माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा। नाउ लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब थर्ड कंडीशन, इफ t इज इक्वल टू टी आई, मतलब इस पॉइंट पर हम कंडीशन डिस्कस करते हैं फॉर थर्मोइलेक्ट्रिक पावर। ओके, तो देखिए एट टेम्परेचर ऑफ इन्वर्शन थर्मो ईएमएफ कितना हो जाता है, फिर से जीरो, मतलब यहाँ पर E की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी, राइट। तो फिर से अब E के लिए इक्वेशन कौन सा है, देखिए इक्वेशन नंबर 1, E की वैल्यू जीरो हो जाती है एट टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन पर। इफ T इज इक्वल टू I इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर E की वैल्यू जीरो रखते हैं, जीरो इज इक्वल टू अल्फा। अब T के जगह पर क्या लिखना है, टी आई लिखना है, टी आई प्लस बीटा, T के जगह पर क्या लिखना है, टी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ओके, नो बीटा टी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, ये दूसरी तरफ आने के बाद क्या होगा, माइनस अल्फा टी आई, है ना। अब टी आई स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, टी आई के लिए इक्वेशन क्या होगा फिर, देयरफॉर टी आई इज इक्वल टू, देखिए ये 2 इधर चला जाएगा और बीटा डिनोमिनेटर में, तो माइनस 2 अल्फा बाय बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, है ना। अब देखिए टी आई इज इक्वल टू 2, ये फैक्टर पहले लिखते हैं हम 2। ओके, अब माइनस अल्फा बाय बीटा मतलब क्या होता है, टी एन। तो माइनस अल्फा बाय बीटा की जगह पर हम टी एन लिखेंगे, दैट इज टी एन। दैट इंप्लाइज टी एन इज इक्वल टू टी आई डिवाइडेड बाय 2। देखिए ये इक्वेशन यहाँ पर प्रूव होता है ना, टी एन इज इक्वल टी आई अपॉन 2, दैट इज न्यूट्रल टेम्परेचर इज इक्वल टू हाफ ऑफ टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। लेकिन कौन से कंडीशन में, इफ कोल्ड जंक्शन इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट्स,